Hello students. NCERT is considered one of the best books for clearing your concepts and preparing for JEE, NEET and IIT exams. Therefore, in the line of lectures, our next lecture is 2.3, in which we are considering example 2.10. Before that, in the last lecture, we have discussed example 2.9. So today example 2.10, what is there in example 2.10? Let us see. There are two resistors of resistances. R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm. So 100 is mean actual value of the resistance R1. 3 is the mean absolute error. Similarly, R2 is 200 ohm and its mean absolute error is 4 ohm. So R1 and R2 are given. So they are first connected in series and then connected in parallel. What we have to calculate? We have to calculate the total resistance. So if we calculate the total resistance in series, let us see the first part. So R is equal to R1 plus R2 formula will be used. So R1 100 plus minus 3 plus R2 200 plus minus 4. So it will become 300 plus minus 7 ohm. So absolute errors are added because this is a formula of addition. So as I told you कि जब एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है फॉर्मूले में तो एब्सोल्यूट एरर्स जो है ऐड हो जाती हैं. ओके, दोनों में ऐड होती है. और जब प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन होता है तो उस वक्त जो होता है हम एब्सोल्यूट एरर के बजाय रिलेटिव एरर्स को देखते हैं, उनका सम हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं सीरीज कनेक्शन में जब ऐड किया हुआ है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 300 प्लस माइनस 7 ओम. 7 ohm आया, 3 plus 4 absolute errors are added. Okay, maximum possible error has been taken. Now if they are connected in parallel, then equivalent resistance we have to find out. Then we have to use this formula for the parallel connection of the two resistors. 1 upon R dash is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. R dash is the equivalent resistance. So R dash comes out to be R1 R2 upon R1 plus R2. So that comes out to be, put the values of R1, R2 and R1 plus R2 here. You will get 200 by 3, that is 66.7 ohm. You do the calculation yourself with the help of the calculator so that you get enough practice of the calculator. Then we have to use this formula, and they are saying that use this formula to obtain the error in the parallel combination of the resistance delta R dash. Now how they arrive at this formula, let me explain you. See the blackboard here. So 1 upon R dash is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 is written. So we have written in this form, and we will differentiate with respect to R. So differentiate. So formula nx n minus 1 formula. What is the differentiation of x to the power n? D by dx of x to the power n is nx n minus 1. That formula is used, and we get minus 1 R dash to the power minus 2. And because we are differentiating with respect to R, not with respect to R dash, so we will have dr dash upon dr. Similarly, on the right hand side, minus 1 R1 to the power minus 2 dr1 by dr plus minus 1 R2 to the power minus 2 dr2 by dr. So on both the sides, taking minus sign common, minus sign goes off and dr also goes off, both the sides. Okay, so what we are having remaining is dr dash upon R dash square is equal to dr1 upon R1 square plus dr2 upon R2 square. That is given, and this has to be used by us in this particular question. So we have used this relation, delta R dash, dr dash matlab delta R dash upon R dash square equal to delta R1 upon R1 square plus delta R2 upon R2 square. So we have to calculate delta R dash. R2 dash square is to be multiplied here. Okay, R2 dash square comes here. So by putting the value, delta R1 is what? Delta R1 is 3. Absolute error in the measurement of R1 is 3. What is delta R2? Delta R2 is 4. Absolute error for delta R2 is 4. That is given in the question. Okay. So what is R dash? R dash we have calculated 66.7 ohm. So 66.7 whole square comes here. This one, this. And here also 66.7 whole square. Okay. R1 square is 100 square. R2 square is 200 square. So on calculation, it gives us 1.8. So the error in the parallel combination of resistances delta R dash is
1.8. So R dash can be written as 66.7, the parallel combination of resistance R1 and R2, and the error value 1.8 ohm. Okay. Now, suppose error we have to calculate in case of Z is equal to A square. So this is the product formula, Z is equal to A into A. So in the product formula, we have, we know that delta Z upon Z will be delta A upon A plus delta A upon A. Fractional errors will be added. Okay, in the product or division formula, delta A upon A plus delta A upon A. Fractional errors. So this is 2 times delta A upon A. If we generalize this, suppose Z is equal to A to the power. Suppose we have Z is equal to A to the power 5. Then by the similar reasoning, we can say that delta Z upon Z is equal to 5 times delta A upon A. Okay. So a generalized formula has been made. What is the generalized formula you see? Suppose Z is equal to A to the power P, B to the power Q, and C to the power R. Then delta Z upon Z is equal to P times delta A upon A plus Q times delta B upon B and plus R times delta C upon C. So this P, Q and R are the powers of A, B and C. So they come in multiplication with the fractional errors, delta A by A, delta B by B and delta C by C. You see all plus sign are there. Okay, even if the division is there, all plus sign are there. So this is a generalized formula. And to understand this generalized formula, let us solve this question example 2.11. Z is equal to A to the power 4, B to the power 1 by 3 divided by C, D to the power 3 by 2. So division sign के नीचे है C or D to the power 3 by 2. So using the generalized formula, what we will have, delta Z upon Z will be given by 4 times delta A upon A plus 1 by 3 times delta B upon B plus delta C upon C plus 3 by 2 times delta D upon D. So all plus sign are there because we have to take the maximum possible error. Okay. Now let us see the example 2.12 in the line. The period of oscillation of a simple pendulum is T is equal to 2 pi under root L by G. Simple pendulum का formula है ये. Length L 20 centimeter, known to 1 millimeter accuracy. 1 millimeter accuracy मतलब 0.1 centimeter accuracy. Least count is 0.1 centimeter of the measurement from which the length is taken. Length is 20 centimeter is taken. So error is 0.1 centimeter. And time for 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds. And wristwatch of 1 second resolution is used. Okay. What is the accuracy in the determination of G? So T is equal to 2 pi into L by G formula gives the value of G as G is equal to 4 pi square L upon T square. Okay. And if we apply the theory of error in that, then delta G upon G will be delta L upon L. 4 pi square में तो कोई error नहीं होगी, constant है. Error will be 0. So delta G upon G will be delta L upon L plus 2 times delta T upon T. So it is written in this delta L upon L, we easily know we need delta T upon T. So for what we do for delta T upon T, the time period is given by the total time taken 90 seconds divided by the number of oscillation. So 90 by 100. Okay. So time period T is T by N. We can understand this in this manner that T is equal to T by N. And if the two values of T measured are T1 and T2. Okay. So T1 minus T2 is delta T. And here two values of T, small t are T1 and T2. So here it will be small delta T and divided by. So writing this formula 2 times and subtracting, we will get delta T is equal to error in time period is equal to delta T upon N. Delta T is the resolution of the instrument. Okay. So delta T, the error in time period upon T will be given by delta T upon T. Divide these two factors. We will get delta T upon T. What is delta T here? Delta T is the resolution of the instrument by which the time is measured. So it is given 1 second resolution. So 1 comes here. Okay. What is T?
t is 90 सेकेंड, ठीक है. टोटल टाइम टेकन इज 90 सेकेंड. ओके, तो 90 सेकेंड comes here. So you see delta t upon t comes out to be 1/90. Now delta g upon g we are calculating. Delta l upon l कितना हुआ, delta l कितना हुआ by delta l मतलब एरर है जो है तुम्हारी 1 mm एक्यूरेसी वाला इंस्ट्रूमेंट लिया गया है, तो इसका 0.1 सेंटीमीटर हो गया. 0.1 सेंटीमीटर डेल्टा एल हो गया. ओके, एल क्या हुआ, एल इज द मेजर्ड लेंथ 20 सेंटीमीटर. ओके, डेल्टा टी अपॉन टी क्या हुआ, डेल्टा टी इज 1 सेकेंड and t is delta t upon t is 90. Okay, so the value comes out to be 0.027. Therefore the percentage error is multiply by 100. परसेंटेज एरर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.7% हो गया. ठीक है, अब इसमें जो है 100 oscillation, 90 second, 1 second, all these are readings. Okay, so keeping in line with the integer values of the readings, we write this 2.7 and 7 को हम राउंड ऑफ कर देते हैं. राउंड ऑफ करेंगे तो 7 की जगह क्या हो जाएगा, 1 मान के इसमें जोड़ देंगे, 2 का 3 हो गया, तो 3% लिख दिया है इसको. परसेंटेज एरर G is 3%. Okay, now let us understand something about the significant. Our next topic is significant figures. So what is the significant figures? सबसे पहले हमें समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं. जैसे कि हमने एक स्केल से रीडिंग लिया, मीटर स्केल से, और रीडिंग आया हमारा 5.2 सेंटीमीटर. 5.2 सेंटीमीटर रीडिंग का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर एंड 2 millimeter that we have observed from the meter scale. But while we are observing in the meter scale, this 2 mm reading is correct or not? We have correctly observed or not? No, we have not correctly observed. If we take vernier calipers, then we will come to know that 2 mm comes out to be 2.5 actually. Okay, so this 2 may not be correct. With the vernier calipers or the screw gauge, we can get the more correct reading. So this last digit in 5.2, this last digit is uncertain, and this is a certain digit about which we are certain. So every reading taken by any instrument, last digit is uncertain. So what are the significant figures? The value which is reliably known plus unreliable digit, last digit, both are taken, and that constitute the significant figures. That means all the digits in the number that are known reliably, जैसे इसमें 5 है, plus the first digit that is uncertain. ये digit uncertain थी, लेकिन इसको भी ले लेंगे, तो इसमें significant figures कितने हुए? Significant figures 2. 2 significant figures हो गए इसमें. 2 significant digits या figure. ओके, तो ये हो गई सिग्निफिकेंट डिजिट्स की डेफिनेशन. ठीक है, मान लो कि एक लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमने मेजर किया और वो उसका वैल्यू आया 287.5. तो ये लास्ट डिजिट अनसर्टेन है, इसको भी ले लेंगे, और 3 + 1 ये मिलके 4 हो गया. देयर आर 4 डिजिट्स विच आर सिग्निफिकेंट इन दिस मेजरमेंट. ठीक है, अगर हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में मेजरमेंट नहीं दे रहे हैं, अगर हम 287.5 को हम 288 लिख देते हैं, इसका मतलब है कि वी आर लूजिंग द प्रिसीशन. वी आर लूजिंग द प्रिसीशन कहने का मतलब है हम ये कह रहे हैं कि हमने जो है अंदाजे से रीडिंग ले लिया है, हमने वर्नियर कैलिपर से ना लेके जो है मेन स्केल से रीडिंग ले लिया है, ऐसा हम कह रहे हैं. वी आर लूजिंग द प्रिसीशन and the digits will be superfluous and misleading also. Therefore we need exact number of significant figures to notify the result. कोई भी चीज को, किसी भी रीडिंग को बताने के लिए हम जो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताएंगे. ठीक है, जैसे कि हमारा 2.308 सेंटीमीटर एक एग्जांपल है कि एक रीडिंग है हमारे पास 2.308. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर. अगर अलग अलग यूनिट में इसको लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.02308 मीटर डिवाइड बाय 100. ओके, तो मीटर में लिख देंगे.
या 23.08 मिलीमीटर बोल सकते हैं इसके, या 23080 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। तो यूनिट चेंज कर देने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 ही रहेंगे। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, तो हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि इस रूल्स के, साइंटिस्ट लोगों ने रूल्स बनाए हैं, इस रूल्स के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिसाइड होता है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो पहला रूल क्या कहता है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट्स आर significant, all the zeros between two non zero digits are significant, दो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। एक तो इनको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेंगे कि all the non zero digits are significant। कहने का मतलब है कि अगर हम 2 3 5 9 एक नंबर लिखा है, ठीक है, तो ये चारों डिजिट नॉन जीरो है एंड देयरफॉर दे आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे 2009 लिखा है या 2.07 लिखा है, तो ये दो जीरो है, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। ठीक है, और ये जो जीरो है ये भी दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। डेसिमल कहीं भी हो सकता है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट गिना जाएगा। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अगर नंबर एक से छोटा होता है, द नंबर इज लेस देन 1, द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 0.002308, देख रहे हैं इस नंबर को, इस नंबर में ये कहता है टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स 2 है, इसके लेफ्ट में जो जीरो है वो, ये दो जीरो नेग्लेक्ट किए जाएंगे, इनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं गिना जाएगा। और डेसिमल के पहले वाला जीरो है, इसको तो गिना ही नहीं जाता है बिल्कुल भी। ठीक है, इसको तो हम ऐसे ही लिख देते हैं जीरो को, ताकि डेसिमल का पता चले कि यहाँ डेसिमल है, नहीं तो 0.002308 लिखेंगे तो पॉइंट तो दिखेगा ही नहीं किसी को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो कन्वेंशनली लगा दिया जाता है, लेकिन इसको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कभी नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे ट्रेलिंग जीरोस का क्या मतलब, 123 मीटर लिखा है, तो इसके आगे जीरो लग जाएंगे तो भी सिग्निफिकेंट डिजिट जो है 3 ही रहेंगे। जैसे कि हमने इसको मीटर को दूसरी यूनिट में लिख दिया, सेंटीमीटर में 12300 सेंटीमीटर लिख दिया, या 123,000 मिलीमीटर लिख दिया, तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस हो गए, ये ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होंगे और सिग्निफिकेंट डिजिट 3 ही रहेंगी। ठीक है, सो ये कुछ चीजें जो हैं आपको ध्यान रखना है कि किस हिसाब से सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनाते हैं, काउंट करते हैं। अब इसमें देखिए, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। तो नंबर 3.500 लिखा है, तो 3.500 लिखा है, तो ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के बाद आते हैं। अगर 3500 लिखा होता तो दो जीरो काउंट नहीं होते, लेकिन 3.500 लिखा है, डेसिमल के बाद आ गए ट्रेलिंग जीरो, तो इनको लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद आने वाली संख्याएं इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन शो करती हैं, ये बताती हैं कि स्क्रू गेज से मेजर किया गया है, डेसिमल के 3 डिजिट तक ये एक्यूरेट है वैल्यू। ठीक है, प्रिसाई वैल्यू है, इसके लिए जो है डेसिमल के बाद आने वाले जीरोस को काउंट किया जाएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। अब देखो 0.06900, इसमें कौन से जीरो को छोड़ेंगे, कौन से को लेंगे? तो डेसिमल के बाद वाले जो जीरो है, डेसिमल के बाद वाले जीरो जो है, ये दो जीरो है आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पहले रूल के हिसाब से इनको हम लेंगे। ठीक है, ये दो लेंगे और ये नॉन जीरो डिजिट तो लेने ही वाले हैं। अब देखते हैं ये वाला जीरो, तो ये वाला जीरो क्या है? ये वाला जीरो हमारे पहले वाले रूल के हिसाब से भले ही डेसिमल के बाद है, लेकिन क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला जीरो है, और दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच वाला जीरो नहीं है ये, इसके इधर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं, राइट में ही 9 नॉन जीरो डिजिट। तो ये फॉल करता है कौन सी कैटेगरी में? ये करता है right of the to the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digits are not
ये वाला रूल लगेगा इसमें, द नंबर इज लेस, ठीक है, तो नंबर इज लेस देन 1 एंड दिस 0 विल बी नेग्लेक्टेड, ये तो हमेशा नेग्लेक्टेड रहता है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हुई? 6900, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें हुई। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए हमें ये रूल्स याद रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सब जो लफड़ा आता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट है कितनी है इसमें, तो इसको एम्बिग्युइटीज को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना पड़ता है। साइंटिफिक नोटेशन मतलब पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 क्या है? पावर ऑफ 10 है कि जैसे हमने किसी भी नंबर को लिखा कि 237.59 लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2.3759 इंटू 10 की पावर 2। तो ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। एक डिजिट जो होती है 0 to 9 के बीच में, उसके बाद डेसिमल लग जाता है, और उसके बाद ये नंबर क्या किस प्रकार से डिसाइड होगा? प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट पे डिसाइड होगा। और हम किसी किसी केस में कुछ डिजिट्स को हम छोड़ भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, कौन सा चीज़ हम मेजर कर रहे हैं। हो सकता है कि हमें इसको लिखना पड़े 2.3 इंटू 10 टू द पावर 2.4, राउंड ऑफ करके 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2। ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। तो साइंटिफिक नोटेशन में अपने को ये वाली सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं और ये वाली डिजिट्स को काउंट नहीं किया जाता, ये जीरोस को काउंट नहीं किया जाता। तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट सीधा सीधा बता देंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखा गया है तो अपने को कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, सिग्निफिकेंट डिजिट सीधा पता चल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है? a इंटू 10 टू द पावर b, ठीक है। एक्सपोनेंट b की जो पावर है 10 की पावर है, उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। तो हमारे एग्जांपल में ऑर्डर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट? 2। ऑर्डर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज 2, ये ऑर्डर बताता है। जैसे 1.28 इंटू 10 पावर 7 मीटर है, ये डायमीटर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या है? 10 टू द पावर 7, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 7, ठीक है। ये बताया साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। 4.700 मीटर है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4 है, ठीक है। ये मीटर में लिखा है, इसको सेंटीमीटर में लिख दिया, इसको मिलीमीटर में लिख दिया और इसको किलोमीटर में लिख दिया, ठीक है। तो इसमें हर एक में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही रहेंगे और बाद का 10 की पावर का पावर 2, 3 और 4 ये सब काउंट नहीं होगा। माइनस में पावर होगी तो भी काउंट नहीं होगा। 10 टू द पावर -3 में लिखा, तो दैट विल आल्सो बी नॉट काउंटेड। नाउ लेट अस सी, साइंटिफिक नोटेशन आइडियल होता है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन यूज ना किया गया हो, नंबर ऐसे लिखा गया हो, तो क्या करेंगे? ये रूल अप्लाई करेंगे। और ए नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल, एक से बड़ा नंबर हो तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, और कोई डेसिमल वाला नंबर हो तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। कैसे समझेंगे? जैसे 0.1250 है, ठीक है। तो इसमें जो है जीरो जो है कन्वेंशनली जो पहले रखा गया है, ये तो लिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो जीरो है सिग्निफिकेंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, ठीक है। जैसे कोई नंबर है, फुल नंबर है, इंटीजर है, 2 है, तो 2 एक एग्जैक्ट नंबर है और इसको 2.0, 2.00, 2.000 कैसे भी लिख सकते हैं, और डेसिमल के बाद आने वाला जो जीरो होता है उसको काउंट किया जाता है। इसके लिए इसमें जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। अब क्या होता है? रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। क्यों समझना होगा? क्योंकि अपने को कभी कभी क्या मल्टीप्लाई डिवाइड और कुछ भी करना पड़ता है, जैसे कि डेंसिटी निकालना है अपने को। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है 4.237 ग्राम दिया है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, और वॉल्यूम दिया है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से निकालेंगे तो ये फिगर आएगा। तो कितनी डिजिट हमें एक्चुअली लेनी चाहिए यहाँ पे आंसर? तो ये लेनी चाहिए
जितनी की क्वेश्चन के अंदर जो डिजिट्स हैं उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतनी लेनी चाहिए, ऐसा रूल बनाया गया है। ठीक है, तो इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर द ओरिजिनल। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल रिजल्ट में कितना उतना फिर सिग्निफिकेंट डिजिट रखना है हमें जितना कि क्वेश्चन में है। ठीक है, एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे कि डेंसिटी 4.237 ग्राम डिवाइडेड बाय 2.51 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आंसर हमें लिखना होगा 1.69। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये मिनिमम वाला है, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, तो कम वाला लेना है गिनती। ठीक है, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में फाइनल रिजल्ट में कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, एज मैनी डेसिमल प्लेसेस, याद रखना है इस बात को। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हुआ तो डेसिमल प्लेसेस गिनते हैं, मतलब डेसिमल के बाद कितने स्थान तक, कितने पोजीशन तक आपको वैल्यू लेनी है, जैसे कि दो नंबर के 436.32 टू 27.2 ग्राम एंड 0.301 को ऐड करेंगे तो आंसर ही आ गया, लेकिन हमें लिखना कितने तक है। तो ये एडिशन का सवाल है, तो इसमें जो है डिफरेंट सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले नंबर को ऐड किया जा रहा है, तो आंसर लिखेंगे हम 663.8 ग्राम। क्यों लिखेंगे, डेसिमल के बाद सबसे कम जो संख्या है वो इसमें है 227, डेसिमल के बाद एक संख्या, और 36.22 डेसिमल के बाद दो नंबर, यहाँ पे 0.301 डेसिमल के बाद 3 नंबर, तो सबसे कम जिसमें होगा वो डेसिमल के बाद 1 नंबर, तो हमें आंसर में डेसिमल के बाद 1 नंबर तक लेना है 663.8। समझ में आ गया। इसी तरह माइनस में भी बराबर है, 3.307 माइनस 0.304 करना है तो 0.003 लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब आता है राउंडिंग ऑफ रूल। राउंडिंग ऑफ रूल क्या भैया, तो राउंडिंग ऑफ रूल समझ लो कि 2.746 ये नंबर है हमारे पास, इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हम ये 6 को उड़ा देना है अपने को, 6 जो है 5 से बड़ा है। इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 5, तो जैसे कि यहाँ पे 6 आ गया, ग्रेटर देन 5 है तो इसको 1 मान के 4 में ऐड कर देंगे, 2.75 लिखा जाएगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स था। ठीक है, so the preceding digit is raised by 1 if the rounded off number is greater than 5। ठीक है, अब लेस देन 5 होगा तो ऐसे छोड़ देंगे जैसे, अब लेकिन अभी 5 होगा तो क्या करेंगे, अगर नंबर 5 हुआ, रिमूव करने वाला नंबर 5 हुआ तो क्या करेंगे, तो रूल है हमारा कैसा, जैसे 2.745। ठीक है, इसमें जो इस 5 को रिमूव करना है तो ये 4 का क्या होगा, 4 में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे 1, तो कन्वेंशन क्या है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप। तो ये प्रीसीडिंग डिजिट इवन है, जिस नंबर को हमें उड़ाना है 5 को उड़ाना है तो इसके पहले वाली डिजिट इवन है कि नहीं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 2.74 आंसर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा नंबर 2.735 होता, 2.735 होता तो इस 5 को उड़ाना होता तो क्या करते हैं, तो ये इसके पहले वाले नंबर को देखते हैं इवन है कि ऑड है, तो ये ऑड है भाई, तो जब ऑड होता है तो ये बाद में 5 होता है, तो इस 5 को हटाने के लिए एक हम ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो 2.735 होता तो हम क्या करते हैं, इसको 2.7 उसके बाद 3 की जगह 4 हो जाता है, क्योंकि प्रीसीडिंग डिजिट ऑड है। तो ये कन्वेंशन अपने को याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर देख लेते हैं। हर एक साइड क्यूब का जो है 7.203 है, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालो, टोटल सरफेस एरिया में निकालो, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया है 6 टाइम्स 7.203 होल स्क्वायर, 6 टाइम ए स्क्वायर, तो निकाला इतना आया। तो अपने कितने डिजिट लेने हैं, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई वाला सवाल है और स्क्वायर है, लेंथ इनटू लेंथ मल्टीप्लिकेशन वाला सवाल है, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल था, तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो 1 2 3 4 तक लेंगे, मतलब
यहाँ तक लेंगे और ये 9 इज मोर देन 1, 9 इज मोर देन 5, तो ये 2 3 बन जाएगा और 311.3 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? लेट अस सी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड का क्यूब, साइड का क्यूब किया भाई, तो इतना बड़ा आंसर आ गया। अब इसमें कितना नंबर लेना है वही रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन वाला रूल आ गया। मल्टीप्लिकेशन के केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, क्वेश्चन में 4 है तो 4 तक लेना है, तो 373.7 तक लेंगे। और ये जो 1 है इट इज लेस देन 5, तो इसको हम निकाल देंगे यहाँ से। लॉ पेन का निशान लगा देता हूँ यहाँ, ये यहाँ से निकाल देंगे इसको, और इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 373.7 हो जाएगा। यहाँ से हमने 9 को निकाला था, तो 9 को निकाला तो 9 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे 3 हो गया था। देख रहे हैं ना आप लोग? तो आपको क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा जो रूल्स बताए गए, राइट? लेट अस सी एग्जांपल 2.14 हियर। 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज दिस वॉल्यूम। तो ये मास हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। एक्सप्रेस द डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू 5.74 डिवाइड बाय 1.2, ठीक है। अब जो है आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होना चाहिए? 2 होने चाहिए। देखो ये लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये ज़्यादा है, तो लीस्ट के बराबर होना चाहिए, 2 डिजिट होने चाहिए। तो हमारा आंसर जो भी आएगा, यहाँ कैलकुलेटर से देख लेना, 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2 से जो भी आंसर आएगा उसको हम 2 डिजिट तक ही लिखेंगे, और लिखेंगे 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और राउंड ऑफ करने के लिए अगर नंबर 5 से बड़ा होता है या 5 होता है या 5 से छोटा होता है, उसके हिसाब से रूल लगाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यार ये 2 रूल ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बताया है, एक पॉइंट है, देखिए, रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू, रिलेटिव एरर ऑफ ए वैल्यू ऑफ ए नंबर स्पेसिफाइड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन n बट ऑल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि 1.02 ग्राम जो है वो 0.01 ग्राम तक करेक्ट है, ठीक है, ग्राम है ना, तो 1.02 ग्राम में जो प्रिसिशन है 0.01 है, तो 1.02 प्लस माइनस 0.1 लिखा जाएगा इसका वैल्यू। एक दूसरा मेजरमेंट है 9.89 ग्राम का, तो वो भी जो है उसका भी प्रिसिशन 0.01 ग्राम है, ठीक है, सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिया जा रहा है, तो इसको लिखेंगे 9.89 प्लस माइनस 0.01, ठीक है। तो अगर हम जो है रिलेटिव एरर निकालेंगे 1.02 ग्राम में, तो 1.02 ग्राम में रिलेटिव एरर हो जाएगी 0.01 डिवाइड बाय 1.02 इंटू 100, 1% आया। और इस वाले के 9.89 वाले के में रिलेटिव एरर निकालेंगे तो 0.01 डिवाइड बाय 9.89 इंटू 100 से आ जाएगा कितना, 0.1%। तो आप देख रहे हैं ये 1% आया, ये 0.1% आया रिलेटिव एरर। तो relative error of a value of a number specified to significant figures depends not only on n but also on the number itself, ठीक है। तो relative error जो है value of the number खाली इस n पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इस वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, नंबर कितना बड़ा है, नंबर 1.02 है या 9.89, रिलेटिव एरर उस पर डिपेंड करता है। अब ये एक पॉइंट और बताता है भाई, खास बात है, ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट इन मल्टी स्टेप कंप्यूटेशंस शुड बी कैलकुलेटेड टू वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर इन एवरी मेजरमेंट देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। तो हमें इंटरमीडिएट जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें बीच के स्टेप्स को क्या करना चाहिए, एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट ले लेनी चाहिए, तब कैलकुलेशन करना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड वटेवर, और उसके बाद फाइनली हमें जो है उसको लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट में बदलना चाहिए, ठीक है। कैसे, इसको समझेंगे यहाँ पे कि जैसे 9.58 का रेसिप्रोकल किया तो 1/9.58, ठीक है, और हमने 9.58 के बराबर का हमने जो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर लिखना है, तो 9.1/9.58 आंसर निकाला तो आया 0.104, ठीक है, कर दिया हमने इनवर्स, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसका फिर से रेसिप्रोकल करो तो ये नंबर आना चाहिए, लेकिन 0.014 का रेसिप्रोकल करने पे नंबर क्या आता है भैया, नंबर 9.62 आता है, जबकि कितना है 9.58 आना चाहिए था।
9.62 आ गया, क्यों नहीं आ रहा है? इसका उल्टा ये हो गया तो इसका उल्टा ये क्यों नहीं हुआ? तब यहाँ पे रूल ये समझ में आता है कि अगर हम ये जो है इसका रेसिप्रोकल करते वक्त जो आंसर आया उसमें एक ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट ले लेते तो काम सही हो जाता। कैसे? जैसे कि 1/9.58 को हम 0.104 के बजाय 0.1044 यहाँ ले लेते हैं और तब इसका उल्टा करते हैं तो हमारा 9.58 आ जाता है। समझे कि नहीं? अगर क्या किया हमने, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लेने के बजाय हमने एक ज्यादा मतलब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट लिया और तब इसका रेसिप्रोकल करके देखा तो ओरिजिनल नंबर अपने को मिल गया। तो ये एग्जांपल हमें बताता है कि इन्हें मल्टी स्टेप कैलकुलेशन जो है अपने को बीच में कैलकुलेशन करने में एक डिजिट ज्यादा ले लेते हैं, बाद में कैलकुलेशन करने के बाद में फाइनल आंसर के टाइम में राउंड ऑफ करके या सिग्निफिकेंट डिजिट्स जितनी है उसके बराबर का लिख देते हैं उसको। समझ में आया? So this is the thing. तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सब रिपीटेड रूल्स हैं, इसके लिए मैंने आपको नहीं किया है एक्सप्लेन, और जो जो मेन पॉइंट्स है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज का लेक्चर हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में शुरू होगा बच्चों एनसीईआरटी का डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस क्या होती हैं ये हम समझेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस। ओके ओके, थैंक यू, गुड बाय।